everyone, welcome or welcome back to my channel. So I'm Gargi Vaishnav and currently I'm a final year MBBS student at KGMC Lucknow, and in this video we'll be talking about how to manage your time as a student. So managing your time is very important as a student because a lot of lectures, assignments and mock and tests that you have to complete on time, and you have to prepare for a very humongous examination known as NEET or JEE. So time management is very crucial because if you won't complete your syllabus or you won't complete your revision on time, you'll surely end up getting very less marks in your mock test examinations, and then you'll lose your confidence over there. Here's are some practical ways that you can apply in your daily routine to manage your time, to manage your energies, and I've been using all of them since a very long time, and it has given me tremendous and great results. So without any further delay, let's begin the video. So number first tip is start with a weekly plan and not with a daily plan, right? So what I mean to say here is most of the students, what I see is, even I was one of them before I realized that I should be doing it this way, like schedule everything every day, every single day. But since I've started using this weekly scheduling technique, it has literally changed everything. So what I do in this is, on every Sunday I literally plan everything, like my content, like my studies, like my business program that I'm running. I plan literally everything the previous Sunday, from Monday to Saturday, and whatever, so that every single day of the week I don't have to waste my energy, I don't have to waste my time thinking about what I have to do the next day. And on Sunday I reflect upon whatever things are left and whatever things I could not do in the past 6 days. I just complete that task on Sunday, and I plan the next week on Sunday itself. So Sunday is the day on which I complete the remaining tasks which are left. I schedule everything for the next week, and I reset, and I just relax and reset a bit so that I can work with more enthusiasm and with more energy the following week. तो इससे ये फायदा होता है यार कि every day you don't have to waste your time and energy thinking what you have to do today. ठीक है, तो on Sunday I literally plan like everything, and the night before each day I just jot down everything that I had already planned on Sunday, right? The day I'm shooting this video is a Sunday. Okay, so I had to shoot this video yesterday, but I could not due to some work, and so I'm shooting this video today. And today itself I have already planned what I'll do on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. अब when I have already planned my entire week on Sunday, तो मैंने जो भी चीज प्लान करी होती है, मैं बस एक दिन पहले उनको अपनी एक टू डू लिस्ट में डाल देती हूँ कि कल मुझे ये सारा काम करना है, कल मुझे ये सारा काम करना है, क्योंकि जब तुमने संडे को पूरी चीज से प्लानिंग करी, वो सारी चीजों में एज इट इज तो याद नहीं रहेगी, तो मैं एक टू डू लिस्ट अपने फोन में बनाती हूँ, ठीक है, जिससे मैं उनको एक जब वो दिन कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसको बस स्ट्राइक ऑफ कर देती हूँ, सो दैट आई रिमेंबर कि मेरा कौन सा काम हो गया, कौन सा काम नहीं हुआ है, जो कि मुझे संडे के लिए मैं छोड़ देती हूँ कि मुझे उस दिन कंप्लीट करना है. तो दिस मेथड हैज रियली मेड माई लाइफ सो ऑर्गेनाइज्ड in terms of the business or the program that I'm running, in terms of the content that I'm making and shooting every day, and in terms of my studies, because I just can't leave my studies behind, right? So this is very crucial that you plan your entire week the previous Sunday, so that you have enough time, enough energy to focus everything on that particular goal, and do not waste time on thinking that what you have to do. You spend all of your energy and all of your time in doing that thing instead of just planning or thinking about that thing. So this is a very big game changer, and you can try this out, and this has worked tremendously for me. So now coming to the second point. Second point is that study in time blocks. Look, यार देखो, तुम्हारा एग्जाम ना 3 घंटे का है, तो तुम्हें 3 घंटा बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत होनी चाहिए, और इतनी ज्यादा आदत होनी चाहिए कि तुम्हारी बॉडी को उस दिन ना बिल्कुल एलियन जैसा फील ना होगा, तुम 3 घंटे बैठ के फोकस कर रहे हो, ठीक है. ये मेहनत ना सिर्फ लास्ट के 2 या 3 महीने में नहीं होती है, उसमें करोगे तब भी तुम कर पाओगे, बट अगर तुम अभी से करोगे ना तो तुम्हारे लिए एफर्टलेस हो जाएगा उस टाइम पे तुम उस चीजों पे ध्यान दे पाओगे जिस चीजों पे सच में तुम्हें ध्यान देना चाहिए, राइट? सो जस्ट स्टडी इन टाइम ब्लॉक्स मतलब कि 3-3 घंटे के सेशंस में डिवाइड कर लो अपना पूरा दिन. जब भी तुम पढ़ने बैठो, हमेशा ना 3 घंटे के सेशन में बैठो, तुम्हें 3 घंटा बैठने की आदत लग जाए, राइट? और ना मतलब उन 3 घंटे मैंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर काम को, जैसे कि तुमने कोई मॉक टेस्ट दे दिया, फिर नेक्स्ट 3 घंटे बैठ के तुमने पूरा पेपर एनालाइज कर दिया. इफ यू शफल लेस बिटवीन द थिंग्स ना, तो तुम्हारा फोकस और तुम्हारी एनर्जी ना एक चीज पे रहेगी. अब जैसे तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ना तुम स्विच कर सकते हो सब्जेक्ट्स,
हर एक ब्लॉक वाइज कि तुमने 1 घंटा, मतलब तुमने 3 घंटा पहले बायोलॉजी पढ़ ली, फिर अगला 3 घंटा तुमने केमिस्ट्री पढ़ लिया, और अगला 3 घंटा तुमने एक टेस्ट दे दिया, ठीक है। तुम ऐसे स्विच कर सकते हो, और विद इन अ ब्लॉक भी तुम स्विच कर सकते हो, बट ये है कि ज्यादा स्विच मत करना, क्योंकि इससे ना तुम्हारी एनर्जी ना एक जगह पे नहीं लग पाती है। तो इट्स बेटर कि तुमने एक ब्लॉक में पढ़ो, टाइम्ड ब्लॉक में पढ़ो, और टाइम्ड ब्लॉक में भी अगर तुम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट एट मैक्स पढ़ोगे, तो इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, और तुम्हारा टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होगा। कि तुमने टाइम लगा दिया कि सुबह मुझे 6 to 9 पढ़ना ही पढ़ना है, सुबह उठ के 5 o'clock तुम उठे, 6 to 9 तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन दोस 3 hours, तुम्हें इस तरीके से पढ़ना। और ऐसे तुम अगर 2 या 3 सेशन भी कर लोगे पूरे दिन में, तो आई थिंक दैट्स इनफ, और तुम कंसिस्टेंटली करते जाओ, तो दैट्स मोर देन इनफ यार। मतलब और तुम प्रोडक्टिवली उन 3 घंटे बैठ पा रहे हो, दैट इज रियली वेरी गुड start, and even that is really very good technique to move towards your goal, right? So number 3 point is managing the distractions. Look, यार देखो, टाइम मैनेज करना जितना इंपॉर्टेंट है ना, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर डिस्ट्रैक्शंस। अब यार डिस्ट्रैक्शंस हमारी कौन सी चीज होती है, लेट मी जस्ट रीडिफाइन और डिफाइन फॉर यू, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शंस वो सारी चीजें होती हैं जो कि तुम्हारे, मतलब तुमने अपना एक गोल बना रखा है कि नीट एग्जाम तुम्हारा एक गोल है, इसके बाहर जो भी चीजें होंगी वो सब डिस्ट्रैक्शन है। whatever thing that is pulling you away from this goal and not adding some value in your life for you to be able to move towards the goal is a distraction for you. Even अगर तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो कि तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा पार्टी करने को बोलते हैं, या फिर they are just distracting you away or saying some toxic comments or negative comments so that you don't feel like studying, even those are distractions for you. So you need to be very intentional in cutting them off. For how to fight your phone addiction, I've completely explained in this video. You can go and check that out. It will be really very good for you all. And try करके देख लेना, सब चीज काम आती है उसमें, मैंने जितना भी वीडियो में बताया है, ठीक है। और जो भी तुम्हारी अलग अलग डिस्ट्रैक्शन है, जस्ट आइडेंटिफाई इट कि तुम्हारा टाइम जा किधर रहा है। अगर तुम्हारा कोई टाइम ऐसी जगह पर जा रहा है जो कि तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ नहीं लेके जा रही, तो जस्ट कट दैट थिंग आउट, ठीक है। just cut that thing out from your daily routine, and you will see a very tremendous change in your daily routine and your effectivity and your productivity also. So the next point is using a Pomodoro, ठीक है। अब यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम वो 3 घंटे वाले सेशन नहीं कर पाते हैं, आई अग्री विद दैट। वो सेशन 1 या 2 तो पूरे दिन में हो जाएंगे, एंड 1 or 2 is good enough. If you're not feeling like studying, if you're finding it very difficult to focus, you can use the Pomodoro technique, that is called 25:5 technique or 45:15 technique. That is, you study and focus for 25 minutes, and you take a break for next 5 minutes, and then you repeat this process. Or you work or focus for 45 minutes, and then you take a break of 15 minutes, right? So you can use this technique. It is really very helpful. Even I use this technique like every day whenever I feel like very burnt out, or whenever I do not feel like doing my work or studying. I just focus for 25 minutes, and you can use the app Forest app, and this is not at all a promotional video. भाई उस ऐप ने मेरी इतनी मदद करी है ना, इसलिए मैं उस ऐप के बारे में हर वीडियो में बोलती हूँ, ठीक है। मतलब यार जब भी मुझे पढ़ना होता है ना, मैं बस वो प्लांट लगा देती हूँ, ठीक है, और मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि ना मतलब आई एम फोर्स्ड टू ओनली स्टडी, ठीक है। मैं उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकती बिकॉज आई जस्ट कांट यूज माई फोन, ठीक है। एंड ऑन माई आईपैड आई जस्ट डोंट कीप माई डिस्ट्रैक्शंस इन माई आईपैड, ठीक है। और फोन मेरा ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, इसमें मैं फॉरेस्ट ऐप लगा देती हूँ, तो उसके बाद तो आई एम ओनली लेफ्ट विद स्टडीज, राइट। तो if you are finding it very difficult, so to apply Pomodoro technique, you can use the Forest app. The next thing is know your golden hours. What I feel is यार कि ना सबके ना एक peak hours होते हैं, ठीक है। मतलब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा if you're a night person or a morning person, नीट के टाइम पे यार मैं स्टार्टिंग में ऐसे नाइट पर्सन थी, ठीक है, बट फिर बाद में मैं एकदम ऐसे मॉर्निंग पर्सन हो गई, और क्लासेस अभी मेरी क्लासेस चलती हैं, तो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, ठीक है। बट मैं देर रात तक भी काम कर सकती हूँ, मतलब आई एम वेरी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है। बट मुझे अपने पीक आवर्स पता है कि मैं किस टाइम पर सबसे ज्यादा फोकस्ड हो सकती हूँ, ठीक है। तो यार नो योर गोल्डन आवर्स। जब तुम्हारे गोल्डन आवर्स हो ना, उस टाइम पे ना सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के और सिर्फ एक गोल पे फोकस करो, ठीक है। तो इससे ना तुम अपना टाइम और एनर्जी एक जगह पे लगा पाओगे। जब तुम एक जगह पे लगाओगे ना, तो यू विल मूव फास्टर देन यू हैव इवन प्लान्ड। आई जस्ट कांट स्ट्रेस इनफ कि यार ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट पॉइंट है, एंड दिस इज लाइक द बेस्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। दैट इज, मतलब लेट मी टेल यू, whenever you have to improve something ना, you have to measure it first, ठीक है। मतलब ये बेसिक थ्योरी होती है, ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज हेडिंग इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर डे, ठीक है। तो वट एवर यू हैव टू इम्प्रूव, यू नीड टू मेजर इट फर्स्ट। तो यार इन सब का ना सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि
कि बिफोर गोइंग टू बेड ना यू नीड टू लिटरली आवर बाय आवर राइट डाउन कि तुमने किधर किधर अपना टाइम वेस्ट किया या किधर किधर अपना टाइम यूटिलाइज किया। डेली ये करो, और जब तुम डेली ये करोगे ना यूल रियलाइज कि यार तुम्हारा टाइम ना बहुत ही आलतू फालतू जगहों पे ज्यादा जा रहा है। जैसे कि अगर इफ यू आर स्टेइंग एट योर होम व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जेईई एग्जामिनेशन, यूल रियलाइज कि तुम्हारा टाइम ना अपने मम्मी पापा से बात करने में या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो उस चीज को ना तुम इंटेंशनली अपने रूटीन से हटाओ। वो तुम तभी हटा पाओगे जब तुम इस चीज को मेजर करोगे कि तुम्हारा टाइम एक्चुअली में जा कहाँ पर रहा है। राइट, तो एक एग्जाम्पल है, मैं एक सेकंड एग्जाम्पल देती हूँ मैं अपने रूटीन से कि मतलब मेरा टाइम ना ज्यादातर ना रिलैक्स करने में चला जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि आई रियली फील कभी कभी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग सा लगने लग जाता है जब भी मैं अपनी पोस्टिंग या क्लासेस से वापस आती हूँ। तो जब भी मैं इन सबसे वापस आती हूँ ना आई जस्ट रिलैक्स अ लॉट। मतलब मेरे को पता ही नहीं चलता कि यार मैं इतने टाइम से बस रिलैक्स कर रही हूँ, मैं कुछ काम ही नहीं कर रही हूँ। तो आई जस्ट राइट डाउन कि मैं कितना टाइम लगा देती हूँ। आई जस्ट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वाइल हैविंग माई डिनर और वाइल हैविंग माई लंच। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। और ये मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैंने ये टाइम को मेजर किया कि यार मैं पिछले 1 घंटे से सिर्फ खाना ही खा रही हूँ। ठीक है, मतलब दिस इज इनसेन यार। मतलब मैं इतना क्या शार्क टैंक में घुस गई। मतलब आई रियली लाइक वॉचिंग शार्क टैंक व्हेन आई एम हैविंग माई फूड। तो मैं इतना क्या शार्क टैंक में घुस गई कि यार मैं 1 घंटे से खाना ही खा रही हूँ अपना। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। ठीक है, एंड आई एम रियली ट्राइंग ऑन दिस वन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये मुझे तभी पता चला जब मैंने ये चीज मेजर करी और मैं हर रात को बैठ के करती हूँ। एंड दिस हैज रियली गिवन मी वेरी 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 फ्रूटफुल रिजल्ट। स्टार्ट ट्रैकिंग योर डे, रिफ्लेक्ट अपॉन कि तुमने जो चीज प्लान करी थी वो चीज प्लान के अकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई। और अगर नहीं हुई तो इट डज नॉट मैटर, क्योंकि हमारे पास एक संडे है जिस दिन हम पूरा रीसेट होंगे। उस दिन हम सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। जो एक दो चीजें बच गई थी वो हम संडे को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा कुछ वो नहीं होता है कि तुमने अगर नहीं किया तो बहुत खराब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इट जस्ट दैट कि तुम अपना टाइम, अब तुम्हें पता है एग्जैक्टली कि तुम्हें क्या करना है, और इसी टाइम पर आई जस्ट मेक माई टू डू लिस्ट फॉर द नेक्स्ट डे। ये वही सारी चीजें होती है जो मैंने संडे को प्लान करके रखी थी, बस मुझे अपनी टू डू लिस्ट में डालनी है। ठीक है, तो विद दिस आई जस्ट completed the whole video and I just completed the whole day and whole week। मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती थी अपने नीड के टाइम पर, और मैं अपना अभी आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। ठीक है, while managing my time because it gets really very hectic along with my MBBS, really very hectic sometimes, but time management is very important यार। मतलब अगर तुम्हें बहुत सारी चीजें करनी है तो time management is the key, right? So with this note we'll end this video. I started my mentorship program to help need droppers with daily accountability, a clear plan, emotional support, weekly check-ins, someone to guide you when you will feel lost. If that's something that you need, then you can message me on my WhatsApp number. I've provided the WhatsApp number in the description box as well. You can check it out over there. And always remember, there will be hard days, there will be days when you will feel lazy, but always remember your dreams are very bigger than your excuses. Even if you're very tired, study a little. Even if you're very demotivated, just begin, because one day now all of this struggle will be all worth it. And believe me, these are the times that most people quit, and the one person who moves even 1% ahead will surely see results, because that will create evidence for your brain that you will work even when you will not feel good, and this evidence will boost your confidence to another level. And if you want help staying consistent, then I'm just one message away. You can message me and the WhatsApp number is in the description box. Do check that out. Yeah, that's all for the video. Do not forget to hit that subscribe button because it makes up for all the effort that I put into making such videos. And do share it with your friends who needs it the most. So we'll meet in the next video. Okay, bye.